جان کو خطرہ ہے. جو سردار جاگیردار اتنی سیکیورٹی کے بیچ میں پولیس اور رینجرز کے بیچ میں بدماشی کر سکتے ہیں تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاروں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کب تک قوم کی بیٹی ننگے پاؤں انصاف مانگتی رہے گی؟ کیا نور مقدم اور مائرہ ذوالفقار جیسے کیسز کے فیصلے نئے پاکستان کا راستہ بنائیں گے؟ یہ اس نئے پاکستان کی بات کر رہی ہوں جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان، جس میں سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہوں گے. کیا غریبوں، امیروں، با اثر، کمزور، جاگیرداروں، وڈیروں اور عام عوام کے لیے یہ ایک پاکستان جس کا خواب دکھایا جا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ بن پائے گا؟ کیا رباب چانڈیو جو کہ پاکستان کی بیٹی ہے، اگلے قاتلانہ حملے سے پہلے اس کو انصاف مل پائے گا؟ بار بار قاتلانہ حملے اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچاری ہر ایک سے یہ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم سب مل کے اس کا ساتھ دیں، اس کی آواز بنیں اور اس کے جو خاندان میں قتل کیا گیا ان درندوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس پاکستان کی بیٹی کو انصاف مل سکے. پاکستان میں آخر انصاف کے حصول کے لیے سالوں سال کیوں لڑنا پڑتا ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے. یہ سٹوری بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پاکستان کی اس بیٹی کی کہانی ہے جو کئی سالوں سے اپنے باپ، اپنے چاچا اور اپنے دادا کے قتل کے بعد جو ہے یہ جنگ اکیلی لڑ رہی ہے، تنہا لڑ رہی ہے اور اسے ہماری سپورٹ کی، پاکستان کے سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رباب. ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے. ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ایک امپورٹنٹ جو ہے یہ کیس ہے جس میں ہمیں رباب کا ساتھ دینا ہے، اس کا جو ہے آخر تک ساتھ دینا ہے جب تک اسے انصاف نہیں مل جاتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ کر لیجئے گا تاکہ جتنی ویڈیوز اس حوالے سے یا جتنی بھی ویڈیوز میں اپنی بہنوں کے لیے، بہنوں کے حوالے سے یا ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے بناتی ہوں آپ کو بر وقت ملتی رہے. تو آپ کو بتاؤں کہ والد، چچا، دادا، تین لوگ ایک ہی خاندان سے، ان کے خون کے انصاف کے لیے قانونی جنگ لڑنے والی رباب جو کہ ایک بہت ہی باہمت لڑکی ہے، اس کا کہنا ہے کہ نام نہاد سرداروں کی جانب سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے. مطلب تین لوگوں کو تو مار دیا، اس کے بعد جو لڑکی جنگ لڑ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ اس کے خاندان کے لوگوں کو انصاف مل سکے، اس کو بھی اب جان کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے. ملزمان جو ہیں رباب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ مسلسل جو ہے اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے جیسے فیصلے کی تاریخ جو ہے قریب آتی جا رہی ہے، رباب کہتی ہے کہ میری زندگی کے خطرات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستان کی بیٹی رباب چانڈیو آج میرے ساتھ موجود ہے. میں اس سے بات کروں گی اور آپ لوگوں نے یقین دلانا ہے رباب کو کہ آپ اس کے ساتھ ہر قدم پہ کھڑے ہوئے ہیں اور تب تک لڑتے رہیں گے جب تک اسے انصاف نہیں مل پاتا. کہیں پر جو ہے باپ اپنی بیٹی کے لیے لڑ رہا ہے. جو کیسز ہیں مائرہ ذوالفقار کے، جو کیسز ہے نور مقدم کا، جو ایسے کیسز ہیں قرۃ العین کے لیے، یہاں پہ والد ایسے بے شمار کیسز میں اپنی اولاد کے لیے لڑ رہا ہے اور ایک طرف یہ لڑکی ہے جو اپنے والد کے لیے، اپنے چچا کے لیے اور اپنے دادا کے لیے جنگ لڑ رہی ہے. السلام علیکم رباب. امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گی اور آپ 3 سال سے جو محنت کر رہی ہیں، اسٹرگل کر رہی ہیں، ہم سب آپ کو جو ہے اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ حق اور سچ کے لیے اس وقت کھڑی ہوئی ہیں اور لڑ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جو ہے کامیاب کرے گا. سب سے پہلا سوال 11 سپتمبر جو کہ بہت قریب آنے والا ہے، کیس کے حوالے سے بہت بڑا دن ہے. 11 سپتمبر کو کس طرح کے فیصلے کی امید رکھتے ہیں آپ؟ جی ماریہ، دیکھیں امید تو اللہ کی ذات سے ہے کیونکہ میں ایک مظلوم ہوں اور پورے 3 سال ہو گئے، یہ چوتھا سال چل رہا ہے. میں اسٹرگل کر رہی ہوں، اپنے انصاف کے لیے لڑ رہی ہوں اور فیوڈلزم کے اگینسٹ یہ جنگ ہے. پاکستان کے عدلیہ کا جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنا ہمیں معلوم ہے کہ عدلیہ آزاد ہے اور عدالتوں سے میں امید رکھتی ہوں. اسی لیے میں 4 سالوں سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہوں اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ کیس صرف میرا نہیں ہے، یہ کیس صرف رباب کا نہیں ہے، یہ پوری سندھ کی مظلوم عوام کا کیس ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے پوری سندھ میں ہر دوسرا، ہر تیسرا گھر آپ کو نظر آئے گا کہ فیوڈلزم کا وکٹم ہے. یہاں پہ جاگیردارانہ سردارانہ نظام نے بڑا ظلم رچایا ہے، بڑا ظلم کیا ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. اس میں یہ جو کیس ہے عدلیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے.
कॉग्निजेंस वाले पॉइंट पे, फर्द जुर्म आयद करने के पॉइंट पे ये केस का फैसला आना है 11 सितंबर पे, और मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह की जात से, क्योंकि मेरे घर में जो सानिया हुआ है ना, मुझे तो घर बैठे मैं कहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए था। मेरे वालिद का साया मेरे सर से छीना गया, मेरे दादा का दस्त शफकत मेरे सर से छीना गया, मेरे चाचू का प्यार मुझसे छीना गया। मैं एक अकेली यतीम बच्ची तनहा में जो लड़ रही हूँ, जब इंसाफ की खातिर लड़ रही हूँ, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ अपने मुल्क से, इस मुल्क की अदलिया से, कि मुझे मायूस नहीं किया जाएगा। उम्मे रुबाब, इंसाफ के हसूल के लिए आपको किन मुश्किलात का सामना है? मारिया, इसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है और मैंने बहुत टफ टाइम देखा है। आज भी मैं जो फेस कर रही हूँ ये कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि जो कातिल हैं मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे चचा के इन्फ्लुएंशियल फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इनके, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटिंग MPs हैं, जब उनकी सरपरस्ती पूरी क़यादत कर रही है। इसमें सियासी प्रेशर दिया जा रहा है, मेरे घर के बच्चों के स्कूल पे फायरिंग की गई, मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया। मैं ज़रूर कहूँगी मेरी अम्मी जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं, वो जब रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर रही हैं वो रिटायरमेंट नहीं ली जा रही। हमारी ज़मीनों पे जो है कब्जे करने की कोशिश की गई, हमारी ज़मीनों की इंक्वायरीज कराई गई, खाम एक प्रेशर दिया जा रहा है हमें। और इसमें देखिए, कभी मैंने जैसे अर्ज किया कि बच्चों के स्कूल पे फायरिंग हुई, घर के बच्चों के स्कूल के, कभी हमारे गांव पे फायरिंग हुई है। रिसेंटली 2-3 दिन पहले सबके नॉलेज में है ये चीज़ कि मैं जब कोर्ट से वापस आ रही हूँ, मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई, अटेम्प्ट मर्डर किया गया इन जागीरदारों की तरफ से। तो मेरा सवाल ज़रूर है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है। मैं एक बच्ची हूँ जो इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ और मेरी जान को खतरा है। मुझे हादसा की मौत मारने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की पूरी आवाम मेरे साथ खड़ी हो गई है। और अब मैं जरूर कहूँगी, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सिंध की, पाकिस्तान की बेटी हूँ, और पाकिस्तान की आवाम ने ये मैसेज मुझे जरूर दिया है। मैं मुतमईन हूँ कि मुझे अगर कुछ हो भी गया तो मेरा इंसाफ ये पाकिस्तान की आवाम लेगी, ये पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ जो खड़ी हुई है। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। जिस तरीके से ट्रेंड चला गया #सेव उम्मे रुबाब के नाम से, तो पुरजोर मजम्मत की गई और सब ने ये डिमांड की कि उम्मे रुबाब को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराम किया जाए। तो मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। उम्मे रुबाब, बाअसर मुल्ज़िमान केस पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, जैसे कि नूर मुकद्दम, मायरा जुल्फ़िकार, और आपके केस में मुल्ज़िमान जो हैं वो बाअसर हैं? मारिया, कोई कितना भी बाअसर हो ना, कानून सबके लिए एक बना हुआ है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं यकीन रखती हूँ अदलिया पे, और कानून जो है ना, चाहे कितना कोई बाअसर हो जाए, कातिल कातिल होता है, चाहे सरदार हो, चाहे कोई गरीब हो, कोई भी हो, हम कानून की नज़र में एक ही हैं। अब अदलिया पे डिपेंड करता है कि हमारी अदालतें क्या मैसेज देती हैं कि वाकई जो कानून हमारा बना हुआ है सबके लिए बराबर है या कोई फर्क है। लड़ रही हूँ और मेरी जान को खतरा है। जो सरदार जागीरदार इतनी सिक्योरिटी के बीच में, पुलिस और रेंजर्स के बीच में बदमाशी कर सकते हैं, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये मिसयूज ऑफ बेल है, तो इस चीज पे नोटिस होना चाहिए। हमारी अदालतें ये चीजें कंसिडर करें। एक खातून होते हुए आप पूरी जिद्दोजहद के साथ, पूरी स्ट्रगल के साथ इस केस को जो है वो लड़ रही हैं। खातून होने के नाते क्या मसाइल दरपेश हैं? एक लड़की होकर ये स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस इलाके से मैं निकल के ये स्ट्रगल कर रही हूँ ना, यहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम है, और अनफॉर्चुनेटली जो सरदार जागीरदार है ना, वो औरत को कुछ भी नहीं समझते। इनके लिए अपने लिए ये एक कानून बना के बैठे हुए हैं, हमारे लिए कोई एक कानून, दूसरा कानून होता है। तो यहाँ पे एक लड़की के लिए निकलकर, वो भी फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट जंग में हिस्सा लेना या एक अलम बुलंद करना बहुत मुश्किल है, टफ है। पर मैं इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि हर चीज़ मुश्किल हो सकती है पर नामुमकिन कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मेरे वालिद साहब का जो मिशन था, जो मेरे बाबा का मकसद था, फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट वो खड़े थे। और मैंने ये अज़म किया है, मैंने ये अलम बुलंद किया है, अपने वालिद साहब के जो मिशन था, उनका जो मकसद था, उसको मैं पूरा करूँगी। और मैं पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि मैं ज़रूर कहूँगी कि
पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान की जो बाशऊर गैरतमंद अवाम है ना, वो मेरे साथ खड़ी हुई है। और जागीरदार सरदार कितने भी बासर हों, पर मैं बीइंग अ मुस्लिम में ये यकीन रखती हूँ कि अल्लाह की जो ताकत है, अल्लाह की ज़ात से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है। आप मुख्तलिफ अंदाज में अपने इस केस के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाती आई हैं, आपको क्या लगता है कि इससे केस पर असर पड़ेगा? मारिया, जो बेगुनाह खून होते हैं ना, वो कभी रायगान नहीं हो जाते। और मैं जो ये स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं जो प्रोटेस्ट करती हूँ, एक तो ये मेरा लीगल राइट है, मैं लीगल हियर हूँ। मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे चचा को शहीद किया गया। अल्लाह की ज़ात इंसान से मेहनत चाहती है, कोशिश चाहती है। मैं अपने हिसाब से स्ट्रगल कर रही हूँ अपने इंसाफ के लिए। यहाँ पे बैठे हुक्मरान अगर मुझे इंसाफ नहीं भी दे सकते ना, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि रोज़े महशर अल्लाह की ज़ात के सामने उन्होंने पेश होना है, अल्लाह की ज़ात के सामने उन्होंने जाकर हिसाब देना है। ये ताकतें, ये कुव्वतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब अल्लाह की ज़ात हमारे साथ खड़ी हो। और इसमें भी मुझे लगता है कि अल्लाह की कोई मसलहत है कि एक निहत्ती बच्ची, एक लड़की जागीरदारों, बास और सरदारों के सामने डट के खड़ी हो गई है, तो अल्लाह की ज़ात इनको दिखाना चाहती है। कहते हैं कि हर गुरूर जो होता है ना, उसका जवाल होता है। तो इन जागीरदारों ने माज़ल्लाह, नऊज़ बिल्लाह नहीं कहना चाहिए मुझे, पर ये खुद को वक्त का खुदा समझ बैठे हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट इस जंग में हम सुरखरू होंगे, मुझे इंसाफ मिलेगा। आप देखें कि मुझ पे जो ये कातलाना हमला करने की कोशिश की गई, मुझे हादसाती मौत मारने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की पूरी आवाम मेरे साथ खड़ी हो गई है। और अब मैं जरूर कहूंगी, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सिंध की, पाकिस्तान की बेटी। उम्मे रुबाब, आपको जान का खतरा है, अब आपको एक बार फिर से मारने की कोशिश की गई। इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से क्या अपील करना चाहेंगी, क्या अपील करेंगे? मारिया, मुझे और मेरी फैमिली को खतरा है। 2-3 दिन पहले मुझे डराने की, हरास करने की कोशिश की गई। और मैं ये रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि अगर मुझे या मेरी फैमिली में से किसी को भी कुछ होता है, उसके जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों जो नामजद MPAs हैं इस केस में, वो होंगे। सरदार खान चांडियो, बुरहान चांडियो जिनके नाम है, और सिंध गवर्नमेंट होगी, क्योंकि इनकी सरपरस्ती की जा रही है, इनको ताकत एक दी जा रही है, पॉलिटिकल जो इनको सपोर्ट दी गई है, उसकी वजह से ये इतने बदमाश बन रहे हैं। एक SSP साहब जो थे, पब्लिकली वो अनाउंसमेंट करके गए, जिनका मैं नाम ले चुकी हूँ बारहा, कि कमर रजा जिस्तानी साहब, उन्होंने कहा था कि मुझ पे गवर्नमेंट का प्रेशर है कि उल्टा मैं आप लोगों पे झूठे मुकदमात दर्ज करूं। तो ये यहाँ पे इंसाफ किया जा रहा है सिंध की बच्चियों के साथ, सिंध की बेटियों के साथ। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए ये ज़रूर उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि सर, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और मैं इंसाफ के लिए दरबदर हूँ। आप मेरे केस का नोटिस लें, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और मेरे जो है इस केस में आप मुझे बुलाएं, मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रखें और मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरी एक सिंपल सी डिमांड है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बहादुर बेटी उम्मे रुबाब चांडियो, और वो हक और सच की जंग लड़ रही हैं, भरपूर अंदाज में लड़ रही हैं, पिछले कई सालों से लड़ रही हैं, और बार बार उनको मारने की भी कोशिश की गई। अब देखें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और अब अगर सबके लिए इंसाफ की फरहमी, इंसाफ की दस्तयाबी जो है इस हुकूमत में, जो कि इनका लोगो है तहरीक इंसाफ, इसमें मुमकिन नहीं हुआ, तो फिर कब होगा? ये तो समझ से बालातर है। मायरा जुल्फ़िकार, नूर मुकद्दम, कुर्रतुल ऐन और उम्मे रुबाब, इस जैसे बाकी भी बेतहाशा मुकदमात हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के लिए अगर मैं ये बात करूं कि ये टेस्ट केसेस हैं, तो ये ही सही होगा। टेस्ट केसेस, उस्मान मिर्ज़ा का केस भी है, टेस्ट केसेस में जो है अजीज़ुर रहमान का केस भी है। तो अब ये सारे केसेस जिसमें पाकिस्तान की बेटियां जो हैं इस वक्त इंसाफ के हसूल के लिए जो है इनकी फैमिलीज़ और ये इंसाफ का तकाजा कर रही हैं। तो अब यही उम्मीद की जाती है कि हमारे मुल्क का सिस्टम, हमारी मुल्क की अदालतें, हमारी हुकूमत जो है इसमें इनकी मदद करेगी। और जो बातें की जा रही हैं बहुत सालों से कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो इन पर अमल दरामद करने का वक्त आ चुका है। उम्मे रुबाब चांडियो जो कि ज़िंदा है, जो कि चाहती है कि उसको इंसाफ मिले, उसको मारने की कोशिश की जा रही है, उसको लाइफ थ्रेट है, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, इन सारी चीज़ों को भी गौर
اس پر کرنا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ ام رباب چانڈیا کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے اور اس کیس کو ایز سون ایز پاسبل اچھے انداز میں ختم کیا جائے. جس نے جو گناہ کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا. جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.